Hello, my dear student. Today is the most important topic of this chapter, that is fundamental force in nature. Fundamental force in nature. Mainly four forces. First are gravitational force, is the first fundamental force. Second are electromagnetic force. Third are strong nuclear force, and fourth and last are weak न्यूक्लियर फोर्स. वैसे बहुत सारे फोर्सेज होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, लॉरेंज फोर्स, लेकिन वो सब सारे फोर्स इन्हीं मेन फंडामेंटल फोर्स के अंतर्गत ही आते हैं. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हाट इज द gravitational force. Also you all are study in class 9th. This is the portion of class 9th science, that is gravitational force. What is the gravitational force? The gravitational force is the force of attraction between two bodies. Suppose that here is the body 1, this is the body 2, are placed at distance r, and distance will take in the center of the body. हमने यहाँ पे दो बॉडी लिया है और इस बॉडी का मास यहाँ पे m1, सेकेंड बॉडी का मास यहाँ पे m2, और ये डिस्टेंस r लिया गया है दोनों बॉडी के सेंटर से. ये डिस्टेंस r है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द होल यूनिवर्स. और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज m1 एंड m2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेज. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. here is the question number 7. If we combine the both equation, so we get f directly proportional to m1 m2 upon r square. If we remove the proportionality sign, so we can write, this implies that f equal to g m1 m2 upon r square. This is the formula. By this formula we can calculate the gravitational force between two bodies. So what is the gravitational force? Gravitational force is the force of attraction between two bodies. How we calculate the gravitational force? By what formula? The formula is that F equal to capital G m1 m2 upon r square, where capital G is the constant, and this constant is called capital G, universal gravitational constant. And the value of capital G are 6.67 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square.
This is the value of capital G. Now, if we are talking about the properties of the gravitational force, what is the main property of the gravitational force? Property. What is the first property? You can say the first property of the gravitational force, it is always attractive force. It is always attractive force. And second property, it is the long range force. ये हमेशा लंबी डिस्टेंस तक काम करता है. आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी क्या करता है, ये काम करता है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आर अट्रैक्टिव फोर्स, सेकेंड आर लॉन्ग रेंज फोर्स, लंबे डिस्टेंस पे काम करता है, एंड थर्ड वीकेस्ट फोर्स, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है. वीकेस्ट फोर्स क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस अगर काम करेगा, आर ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो फोर्स क्या होगा, वीक होगा. सो यू कैन से अट्रैक्टिव फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स एंड वीकेस्ट फोर्स. एंड फोर्थ आर, it follows the inverse square law. It follows the inverse square law. You can see in this formula f inversely proportional to square of distance, so you can say it follows the inverse square law. Now the property number 5, it is the central force. It is central force. What is the central force? Central force means these force can be measured from the center of the body. हमेशा इस फोर्स को बॉडी के सेंटर से मेजर किया जाता है. जैसे ये फिगर है, दिस इज द बॉडी 1, दिस इज द बॉडी 2, और ये डिस्टेंस, ये फोर्स जो मेजर किया जा रहा है बॉडी के सेंटर से मेजर किया जाता है. इसलिए इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी सेंट्रल फोर्स. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स मतलब ये फोर्स को हम बॉडी के सेंटर से मेजर करते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सभी सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं. आप कह सकते हैं all the central forces is conservative forces. मतलब आप कह सकते हैं कि ये कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स होता है. नाउ द नेक्स्ट, एंड इस कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ 7th आर, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है. डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम. आई होप आपको समझ में आया होगा. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है. सेंट्रल फोर्स मतलब द फोर्स विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी. और हमेशा आप जानिए कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स. अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि, और हमेशा जानिए सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है. और लास्ट, ये फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता.